لاپتہ آصف اور رشید بلوچ کی ہمشیرہ۔ میں پچھلے 7 دنوں سے یہاں دیگر لواحقین کے ساتھ اپنے بھائیوں کے بازیابی کے لیے اور دیگر جتنے بھی لاپتہ افراد ہیں ان کے بازیابی کے لیے ہم یہاں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیے بیٹھے ہیں، لیکن ابھی تک پچھلے 7 دنوں میں نہ کسی نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہمارے پیاروں کے متعلق، نہ کوئی یہاں پر آیا۔ ان بارشوں میں، گرمی میں ہم پچھلے 7 دنوں سے یہاں سڑک پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بالکل آسان نہیں ہے۔ ہم ریاست کو، حکومت کو یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کل سے ہم مظاہرے کے سخت اقدامات اٹھائیں گے، اور ان اقدامات میں مطلب اگر ہم لواحقین کو یا ہمارے لوگوں کو کسی بھی قسم کا نقصان ہوتا ہے اس کا ذمہ دار ریاست ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم، میں ایک مسنگ پرسنس کی فیملی میں سے ہوں۔ باقی تمام لواحقین ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اتنے دنوں سے یہاں پہ بیٹھے رہے ہیں۔ ہمارے اس پیسفل پروٹیسٹ کو 7 دن ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے کافی ہماری امیدیں تھی کہ اعلیٰ حکام وغیرہ میں سے کوئی بھی ہمارے آئی کہ ہماری بات سنیں گے، ہمارے مسئلے دیکھیں گے، ہماری ہیلپ کریں گے، لیکن یہاں پہ 7 دن بیٹھنے کے بعد یہاں پہ کوئی بھی نہیں آیا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہم کل سے اپنے ہر طرف مظاہرے شروع کریں گے۔ ہم تمام بلوچ بھائیوں سے، بہنوں سے، سب سے ہاتھ جوڑے ہم جو ہے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ آئیں، ادھر ہمارا ساتھ دیں، اور ہم حکومت اور اعلیٰ حکام کو کہنا چاہتے ہیں کہ کل سے جو ہم اپنے مظاہرے شروع کر رہے ہیں اس میں جعلی اور مالی نقصان جو بھی ہوگا اس کا ذمہ دار حکومت ہوگی یہاں کی، اور یہاں کے جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ سارے ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ پچھلے 7 دنوں سے ہم یہاں پر گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنا دیے ہوئے بیٹھے ہیں، لیکن ہمیں یہاں پر سننے والا کوئی نہیں۔ 7 دنوں سے ہم یہاں پر پرامن طریقے سے بیٹھے رہے، لیکن ہمیں کوئی سننے نہیں آیا، ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے، اور ہم لواحقین ہم نے سب نے فیصلہ کیا ہے کل سے ہم بڑے اقدام اٹھائیں گے۔ اگر کچھ بھی ہوا اس کی ذمہ دار ریاست ہے۔ ہم تک چکے ہیں پرامن احتجاج کرتے کرتے۔ ہم 7 دنوں سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، گرمی سردی سب برداشت کر رہے ہیں، بارش بھی اتنی تیز ہو رہی ہیں، آج بھی اتنی تیز بارش ہوئی، ہم سب بھیگے ہوئے ہیں، ہمارے بچے وہ بیمار ہو رہے ہیں، لیکن اب ہم تھک چکے ہیں پرامن احتجاج کرتے کرتے۔ سالوں سے ہم پرامن احتجاج کرتے آ رہے ہیں، لیکن ہمیں سننے کو کوئی تیار ہی نہیں۔ اب ہم جو بھی فیصلہ کریں گے، جتنا بھی بڑا ہوگا ہم اس سے بھی بڑا قدم اٹھائیں گے۔ یہاں پر جو بھی ہوگا اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی، یہی ریاست ہوگی، لیکن اب ہم پرامن نہیں رہیں گے۔ ہم اپنے پیاروں کے لیے اس سے بڑا قدم اٹھائیں گے۔ السلام علیکم۔ نہ چنات مسلمان خیر خوش کے بازیاب کا ننداڑی مجبوری لاچاری سے تیسن تینا اسٹ چنا کے نہ تینا علم تھی کہ بلوچ قوم کے کل کے تیسن نہ دا مجبور لاچار مرن دافتش دینا تیسن اگا سے لو اس مس ذمہ دار حکومت نن افن نہ باز مہربانی کبو کیسے لو اس کبو کسر گدرس بس سما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راشد حسین علوموٹ کرامر راشد حسین 4 سال لاپتہ ہے۔ یہ دروازے کٹ کرے نوٹ والے کرے ہچو انصاف از ملتنے داسا ننے ہفتہ سے نندا چوکا تو سنون تو ننے سرکاری و اسی بندغز بتنے اسی ننے داخل انصاف از ملتنے نن کے ہچس متنے نندا صاحب بلوچ قومان کھلان اپیل کے نا اسٹوڈنٹ آتان لاپتہ آتا اورا والا تیا نیون آتیاں کھل بریر ننا مدد کیر نم پھگا پیشتنگے نا ہر چوکا ہر روڈا نم پھیری کے نا ننے ہنت نقصان بس چاہے عوامی نقصان بس دانا ذمہ دار کرے سرکارے آنندا خبانا دا ہفتہ سے دا پھر یا خانت ہر گڑا گرمی کھلے و خانر چونکا چنات تو بیمارو بندگوں کنا خانا آپریشن ننداڑی تو سنون چپیڑ کے یار برور ننے اسی انصاف اسا اسر چور تو سرکاری بندگاتا ہنو سمجھ کے خنک بسر بندو ننے خانر نے بینرا داستا ننے ہنت قدم سفین ہنت نقصان بس سرکار ہونا ذمہ وار ننونا ہچو ذمہ داری سب کنے نن پگا ہراڑیس کا کہ ننا بس چلا نم پھیری کرون دا چوکا تیا دا انتا تیا باز آتیا روڈ آتی بند کرون پدا گوڑا ذمہ دار
सरकार नंदारा जिम्मेदार अपन नन बस करे ना हफ्ता से तू सुनन के इच्छा मतलब दासाना सख्तो कदम सफन। अस्सलाम वालेकुम, मैं सम्मी दीन बलोच हूँ और इस वक्त हम लोग क्वेटा में रेड जोन पर गवर्नर हाउस के सामने बैठे हैं, जहाँ पर तलबा तंजीमों समेत दीगर सियासी पार्टियों और लापता अफराद के लवाहिकीन का एक मुश्तरका धरना गुज़िश्ता 7 दिनों से जारी है। और ये एक पुरअमन धरना जो है 7 दिनों से 3 मुतालबात सामने रखते हुए जो है ये धरना जारी है। और इसमें जो एक पहला मुतालबा है वो ये है कि एक जुडिशल इंक्वायरी कमेटी बना दी जाए, और जो दीगर 2 मुतालबात हैं जिसमें दूसरा ये है कि हुकूमत हमें जिस तरीके से ये ज़ियारत वाक़या हुआ था, लापता अफराद को जिस तरीके से फेक इनकाउंटर में मार के उनका कत्ल कर दिया गया, तो हमें हुकूमत जो है ये श्योरिटी दे दे कि हमारे जो है नौजवान हैं, हमारे जो प्यारे हैं, खुदा न ख्वास्ता उनको इस तरीके से नहीं मार दिया जाएगा। और जो तीसरा हमारा मुतालिबा है वो जो कई सालों से रही है, जिसके लिए हम कई सालों से जद्दोजहद करते हुए आ रहे हैं, वो यही है कि हुकूमत हमें हमारे प्यारों की ज़िंदगी के हवाले से, उनकी सलामती के हवाले से हमें अपडेट करे। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 7 दिनों से यहाँ पर ख़वातीन हैं, छोटी शीरखार बच्चे तक हैं, यहाँ पर माएँ हैं और बहनें हैं। होना तो ये हमारे हुकूमतों के लिए एक जो अदलिया की कुर्सी पर बैठे हैं या फिर जो हुकूमत की कुर्सी पर बैठे हैं, उनके लिए शर्म का मकाम होना चाहिए था। लेकिन अब हमें लगता है कि शायद ये अल्फाज भी उनके लिए काफ़ी नहीं हैं, क्योंकि गुज़िश्ता कई सालों से हमने जो है ख़ुद को अज़ियत, हम अपनी दर्द को, तकलीफ़ को दिखाने के लिए रियासत को हमने, रियासत के सामने हमने ख़ुद को बहुत ज़्यादा अज़ियत दी कि हो सकता है हम ख़ुद को जो है अज़ियत में मुब्तला करेंगे, हम ख़ुद सड़कों पर जाएंगे, हम ख़ुद अपनी आवाज़ उठाएंगे, शायद इस रियासत को हमारी दर्द और हमारी तकलीफ़ का अंदाज़ा होगा। जो हम अपने घरों में जिस तकलीफ़ को सह रहे हैं वो शायद हम सड़कों पर सामने लेकर आएंगे। छोटे बच्चे जो हमारे साथ हैं, हमारे साथ मर्द हैं, बूढ़ी माएँ हैं हमारे साथ। हो सकता है इन हुक्मरानों को इस बात का एहसास हो कि ये लापता अफराद के लवाहिकीन किस दर्द में हैं, किस तकलीफ़ में हैं, लेकिन हमें अभी ये महसूस होने लगा है कि हमारे हुक्मरान बिल्कुल बेहिस हो चुके हैं। उनके लिए उनकी हुकूमत, उनके लिए उनकी पॉलिटिक्स, उनके लिए जो है उनकी अपनी स्टेटस और अपनी लाइफ के अलावा और कुछ भी माने नहीं रखती। जब वोट की बारी आती है तो जो है सबसे पहले यही हुकूमती लोग हमारे घरों में कटकटाते हैं, इसी अवाम से तवक्को करते हैं कि वो जो है उनको चुने। लेकिन जब आवाम तकलीफ़ में होती है, जब शहरी तकलीफ़ में होते हैं, तो हर एक बंदा यहाँ से मुंह फेर लेता है। अब जो है गुज़िश्ता 7 दिनों से हम यहाँ पर दिन रात बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो है गर्मी के मौसम में रात को जिस तरीके से यहाँ खुले आसमान तले हम अपने रात गुजारते रहते हैं, जिन मुश्किलात का सामना करते हुए कि शायद हम ख़ुद को अजियत देंगे, हम ख़ुद को तकलीफ़ करेंगे तो रियासत हमारी तकलीफ़ देख के वो समझेगी कि हम किस तकलीफ़ में हैं। लेकिन रियासत हमारी बात नहीं समझ रही। हमारे गुज़िश्ता 13 सालों से मुसलसल जद्दोजहद रही है, जिसमें जो है हमने पैदल लॉन्ग मार्च तक की है, जिसमें हमने मुल्क के वज़ीर आज़म से मुलाकात की है अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए। लेकिन हुकूमत इस मसले में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और हमारे साथ यहाँ पर जितने लापता अफराद के लवाहिकीन हैं उन सब ने ये ऐलान किया है मुश्तरका तौर पर, मुझ समेत, कि हम जो है आज से हम इस वक्त अपने पूरे बलोच कौम से दरख्वास्त करते हैं कि वो जो है हम कल से अपना हमारा जो मुजाहिरा है, हम अपने मुजाहिरों का जो है सिलसिला तेज़ करेंगे और हो सकता है ये मज़ीद सख्त इक़दामात की जानिब जाए। और इसमें हमें पूरे बलोच कौम की हिमायत की ज़रूरत है, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या जो लोग आकर इधर लापता अफराद की लवाहिकीन की आवाज़ बन सकते हैं। और ख़ास तौर पर लापता अफराद की लवाहिकीन से दरख्वास्त करते हैं कि हमें और आपको ये नहीं इंतज़ार करना चाहिए कि किस तरीके से हमारे प्यारे ज़िंदानों के बाद उनके हाथों में हथकड़ियों के निशान जब लगे होते हैं और उनकी जो है पास में एक बंदूक रख
रख कर उनको जाली मुकाबले में मारने का दावा करके उनकी जो है लाशें वसूल करवाते हैं। तो मैं और आप इस चीज़ के लिए इंतज़ार ना करें। खुदारा मेरी दरख्वास्त है पूरे बलोच कौम से जो है मकरान से लेकर हपचौकी से लेकर डेरा बुगटी कोलू तक, जहाँ कहीं भी जो घर भी मुतासर है, जिस घर में भी जो है हमारे भाई, हमारे बाप, हमारे प्यारे गुमशुदा हैं, उन तमाम लवाइकीन से दस्त बस्ता दरख्वास्त है कि वो इस धरने में शिरकत करें और हम जो है इस धरने में हमें हमारा साथ दे दें और एक मुश्तरका आवाज़ उठाएं, जिस पर क्योंकि हम मुश्तरका हज़ारों की तादाद में जब जमा होंगे तब हमारी बात सुनी जाएगी, तब हमारी बात को अहमियत दी जाएगी। लिहाजा ये हम सब का मुश्तरका जंग है और हम सबको ये मिलकर लड़ना है। तो एक बार फिर मैं दरख्वास्त करती हूँ कि कल से जो है हमारे यहाँ पर मुख्तलिफ़ मुज़ाहिरों के तरीक़ेकार होंगे, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स होंगे। तो लिहाजा जो कोई भी क्वेटा में है वो ख़ुद यहाँ पर आकर हमारे इन प्रोग्राम्स में शिरकत करे और जहाँ कहीं भी जो कुछ कोई जो है अपने इलाके की सतह पर अगर कोई मुजाहरा कर सकता है तो उधर वो जो है इजहार यकजहती करके मुजाहरा कर सकता है। और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट्स हैं उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो इस मसले को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करें, क्योंकि हम बलोच के बच्चे हैं और हम तकलीफ़ में हैं, हम दर्द में हैं। हम जिस तरीके से इस वक्त जो है ये गीले ज़मीन पर बैठे हैं और हमारे जो कपड़े तक गीले हैं, हमारे बिस्तरे तक गीले हैं, हम ये सब के सब अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए कर रहे हैं और हमारा कोई मकसद नहीं है और हमारा कोई मतलब नहीं है। और इस जंग में हमें बलोच कौम की साथ की ज़रूरत है और हम उम्मीद करते हैं कि हमें इस बार ये भरपूर साथ मिलेगी। शुक्रिया।